Polysaccharide we already discussed. There are two different type of polysaccharide, homopolysaccharide and heteropolysaccharide. So homopolysaccharide we already discussed. What are homopolysaccharide? In this video we will discuss the heteropolysaccharide. So word heteropolysaccharide itself says that hetero means different, not similar, and polysaccharides means there are different monosaccharide units. Poly means number, many in number. Number of monosaccharides units are present. So heteropolysaccharide molecules get formed when many number of monosaccharides, but they are not similar, they are different type of monosaccharide units, but they link, when they link with each other, they form the molecule known as heteropolysaccharide. Okay, for example, homopolysaccharide में we already saw that homopolysaccharides, we already discussed homopolysaccharide. In these type of molecules, for example, so many monosaccharides units are present. Therefore, polysaccharide. Polysaccharide is similar in hetero and homopolysaccharide. What are polysaccharide? Polysaccharide means there are number of saccharide, monosaccharide units forming the molecule. So when these saccharide units are similar, for example, if we take the example of glucose, okay, it is a monosaccharide. Okay? When there are number of glucose monosaccharide units are present, then the polysaccharide is known as homopolysaccharide. Means glucose. There are many number of glucose present in these homopolysaccharide. But in heteropolysaccharide, if we look in the heteropolysaccharide, these are the molecules which are made up of many number of saccharide units, but the saccharide units are different. In these molecule, number n, for example, n number of glucose molecule, many number of glucose molecule, but in heteropolysaccharide, it is not necessarily glucose is forming whole molecule. For example, if we take the example glucose, one is glucose, other is different group is there. Okay, so therefore the molecule is known as heteropolysaccharide. They are made up of different monosaccharide units. So what is clear in this video? What is the meaning of heteropolysaccharide? It is clear. The heteropolysaccharides are molecules made up of number of monosaccharide units, but monosaccharide units are not similar. There are different types. Okay, the heteropolysaccharides molecule are different example are there. Heteropolysaccharide. So mucopolysaccharide is mucopolysaccharide. For example, mucopolysaccharides. These are heteropolysaccharide. What are mucopolysaccharides? These are a type of heteropolysaccharides. The word mucopolysaccharide. Muco means these muco word in these polysaccharide means there are mucus producing. Mucus producing means they are gelatinous in nature. Gelatinous nature है इनका. Okay, these are gel type. So that's why the word is used here as mucopolysaccharide. So there are different molecule comes under the category of mucopolysaccharide. And what are mucopolysaccharide? These are heteropolysaccharides. So mucopolysaccharide की अगर हम बात करें तो बहुत सारे molecule हैं. For example, pectin is there. Pectin we have already discussed. It play important role in cell wall composition. Pectin. Okay. High hyaluronic acid. Heparin is there. And so many other molecules are present in under the category of mucopolysaccharide. So we will discuss one by one all these mucopolysaccharide. But before discussing these molecules in detail, we will discuss about the brief introduction about the structure of these mucopolysaccharides. So mucopolysaccharides, these heteropolysaccharides are made up of, as we discussed, these are made up of monosaccharide units. They are joined, different monosaccharide units are joined with each other to form the heteropolysaccharide or mucopolysaccharide. But if we look into the structure of mucopolysaccharide,
there are two component present. Mostly these heteropolysaccharide in their structure, if we look in their structure, the mucopolysaccharide are made up of two units. That is, first unit is sugar acid and other unit is amino sugar. Amino sugar. So mostly these mucopolysaccharide are made up of sugar acid and amino sugar. So what are these sugar acid and amino sugar? So what we can say, what are these? These are the derivative of monosaccharide. Derivative of monosaccharides. Okay. अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड का, तो मोस्टली वहां पे दो जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, शुगर एसिड देखने को मिलेगा और अमीनो शुगर। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है कि व्हाट आर दीज। जैसे हमने बोला कि मोनोसैकेराइड यूनिट से बने हैं, बट वहां पे सिंपल मोनोसैकेराइड नहीं होते, मोस्टली ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड। डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड मींस दीज मॉलिक्यूल आर derived from the monosaccharide. These are not simply monosaccharide, but there are some modification in the monosaccharide structure and we got these molecules. So these molecules are known as derivative of monosaccharide. We will discuss the structure of these molecules, how these sugar acid and amino sugar got formed from the monosaccharide units. कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे स्ट्रक्चर अभी. Okay, तो sugar acid, the word itself say sugar acid means sugar is present but acid group is added to the sugar, so sugar acid. Okay, मोस्टली हमें दो तरह के शुगर एसिड देखने को मिलेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड में. वन इज ग्लूकोनिक एसिड, एंड अदर इज ग्लूक्यूरोनिक एसिड. ओके, ये दो एसिड जो है मोस्टली देखने को मिलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूक्यूरोनिक एसिड. ये दोनों जो शुगर एसिड हैं ये किससे डिराइव्ड है? फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज मॉलिक्यूल के डेरिवेटिव हैं ग्लूकोनिक एसिड एंड ग्लूक्यूरोनिक एसिड. सो ग्लूक्यूरोनिक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बोला किसके डेरिवेटिव हैं? ग्लूकोज के. सो ग्लूकोज हमें पता है 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6. यहां पे क्या होता है? CHO ग्रुप है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर. ये 6 कार्बन है, 5th कार्बन, 4th कार्बन, 3rd कार्बन एंड इट इज 2nd कार्बन. ये जो है स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का. ओके, हमने क्या बोला? ग्लूकोनिक एसिड. एसिड ग्रुप जो है जब यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो उसको ग्लूकोनिक एसिड. बट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? अगर एसिड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो जब फर्स्ट कार्बन पे, ओके, जब फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसका नाम क्या दिया जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन है, इफ इट इज कंटेनिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, देन द मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड. एंड कैसे बनता है? हाउ इट फॉर्म? सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब इसका फर्स्ट कार्बन एटम, उसमें ऑक्सीडेशन होती है, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज हियर. ओके, जब यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलती है और एल्डिहाइड ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और देन इट फॉर्म्स द ग्लूकोनिक एसिड. तो वहां पे जो एसिड ग्रुप ऐड हुआ दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड and the formation of whole molecule is known as gluconic acid. So the structure is clear कि यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल मॉडिफाई हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन पे, जब इसका एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ और वहां पे क्या फॉर्म हुआ? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन गया. तो इस तरह से जब मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्लूक्यूरोनिक एसिड. है ही ग्लूकोज के डेरिवेटिव ही, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? ये भी एसिड ग्रुप कंटेनिंग है. इसमें क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप जो है जहां पे हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो सेम रहेगा, बट बाकी रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम, 1 2 3 4
5 एंड 6। मैं यहाँ पे वैलेंसी शो नहीं कर रही हूँ कि सेम रहेगा होल मॉलिक्यूल, सेम एज ग्लूकोज, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप होता है फर्स्ट पे, बस इसका 6th जो कार्बन एटम है इसमें ऑक्सीडेशन होगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कहां पे फॉर्म होगा, यहाँ पे 6th कार्बन पे। ओके, तो ग्लूकोनिक एसिड में फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन है, और ग्लूक्यूरोनिक एसिड में क्या है, कार्बन नंबर 6 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूक्यूरोनिक एसिड इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हेन देयर इज द ऑक्सीडेशन of aldehyde group at the carbon number 1, the molecule of glucose is known as gluconic acid, whereas when the oxidation of alcohol group at the carbon number 6 of glucose, the molecule is known as glucuronic acid. So that is the difference between gluconic acid and glucuronic acid, and these both molecules are derived from the glucose molecule. Okay, सो ये एक कंपोनेंट है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर का, जो कि शुगर एसिड हम बोलते हैं, और ये हमने डिस्कस किया। ये कॉमनली हमें देखने को मिलेंगे ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूक्यूरोनिक एसिड। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज एमिनो शुगर। ओके, तो एमिनो शुगर में क्या है कि यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल जो हमारे शुगर है, ठीक है, उस पे एमीन ग्रुप का एडिशन है, दैट्स व्हाई द वर्ड इज एमिनो शुगर। सो हम इसका भी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे कि अमीनो शुगर जो है कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल में ड्रॉ करूं, रिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, सो हमने ये ड्रॉ किया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, HOH HOH OH ये हमारा क्या है, ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो अब ये अमीनो शुगर कैसे बना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका अगर कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस्ड बाय अमीन ग्रुप, द मॉलिक्यूल इज नोन एज अमीनो शुगर, देन इट इज अमीनो शुगर। ओके, तो ये भी क्या है, डेरिवेटिव है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसैकेराइड। तो जब इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा अमीन ग्रुप से, देन द शुगर इज नोन एज अमीनो शुगर। एंड द शुगर नेम हियर, इट इज नॉट सिंपली ग्लूकोज बट इट इज डी ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन मीन्स amine group is added to glucose molecule and now the molecule is known as D-glucosamine। कई बार क्या होता है, ये जो हमारा ग्लूकोसामीन मॉलिक्यूल है, इसमें जो ये अमीन ग्रुप है, ये जो है एसिटाइलेटेड होता है, एसिटाइल ग्रुप भी इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अमीन ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दें, COCH3, दिस इज एसिटाइल ग्रुप, देन द मॉलिक्यूल इज नोन एज एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। ज्यादा कुछ जो है इसमें डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे अगर अमीन ग्रुप है द मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लूकोसामीन, इफ अमीन ग्रुप इज ऑल्सो एसिटाइल इन एसिटाइलेटेड फॉर्म, द मॉलिक्यूल इज नोन एज एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, और सिंपली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में नाग भी बोल देते हैं, नाग। ओके, और ये नैग स्ट्रक्चर हमने कहां पे डिस्कस किया था, होमोपॉलीसैकेराइड में, जब हमने काइटिन को डिस्कस किया था। ठीक है, वहां पे हमने नैग मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था। नैग जो है वहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है काइटिन का। ठीक है, तो उसमें भी हमने नैग को स्टडी किया था, वहां पे हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये नैग मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है। तो ये किससे डिराइव है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड। तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है नैग का। क्या है इसका, जब ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिटाइलेटेड अमीन से अगर रिप्लेस हो जाता है, देन द मॉलिक्यूल इज नोन एज एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन और सिंपली नैग। अब ये हमने देखा कि ये अमीन शुगर, ठीक है, जो कि किसका कंपोनेंट है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। तो कॉमनली ये जो हमारा नैग है या अमीन शुगर है, ये प्रेजेंट रहता है जब भी हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर बोलेंगे या
म्यूकोपॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अमीन ग्रुप इज यूजुअली सीन देयर इन देयर स्ट्रक्चर। सो हम क्या बोल देते हैं कि दीज म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, अगर हम इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड को देखें तो इनको हम कॉमनली एक और नेम दे देते हैं, क्या, गैग। सो व्हाट आर गैग? गैग इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैग? गैग इज ग्लाइकोसाअमीनोग्लाइकन। गैग इज ग्लाइकोसाअमीनोग्लाइकन्स। ग्लाइकोसाअमीनोग्लाइकन्स क्यों बोला हमने? क्योंकि ये ग्लूकोसामीन यूनिट से मिलके बने होते हैं, और ग्लाइकेन तो हम पॉलीसेकेराइड को रिप्लेस कर रहे हैं ग्लाइकेन वर्ड से। सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड को और क्या नेमिंग कर सकते हैं हम? गैग और ग्लाइकोसाअमीनोग्लाइकन, बिकॉज दे आर कॉमनली, म्यूकोपॉलीसेकेराइड कॉमनली made up of these glucosamine units, therefore they are also known as GAG और glycosaminoglycans। ये वर्ड भी हमें यूजली देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया म्यूकोपॉलीसेकेराइड का कि ये दो कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड, वन इज शुगर एसिड एंड अदर इज अमीनो शुगर, एंड दीज म्यूकोपॉलीसेकेराइड आर आल्सो नोन एज गैग और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। सो व्हाई वी सेट दीज मॉलिक्यूल एज अ गैग, क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोसामीन यूनिट से मिलके बने होते हैं, इसीलिए इनको गैग भी बोला जाता है। सो ये तो देख लिया हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर कि इनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। अब हम जानेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है। म्यूकस से हमें पता चलता है कि दे आर सिक्रीटिंग म्यूकस टाइप, दे आर म्यूकस टाइप मीन्स म्यूकस या स्लाइम प्रोड्यूसिंग बोल सकते हैं, स्लाइम प्रोड्यूसिंग, ठीक है। जेलेटिनस जो होता है नेचर, वो उस टाइप के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, सेल में अगर हम फंक्शन डिस्कस करें तो इनका मेन फंक्शन है टिश्यू के स्ट्रक्चर में, टिश्यू स्ट्रक्चर जब फॉर्मेशन होती है वहां पे इनका बहुत ही इसेंशियल रोल आता है। अब इनका रोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल टिश्यू जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, तो हमें पता है सेल के बाहर का जो एनवायरमेंट प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ओके, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये किस टाइप की होती है? मैट्रिक्स मीन जिलेटिनस, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। सो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ये किससे बनी होती है? दीज म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, क्योंकि ये क्या है, स्लाइम प्रोड्यूसिंग है। तो इनका रोल क्या है कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो गए, फॉर एग्जांपल स्किन हो गया, वहां पे जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वो क्या होती है? जेल लाइक है, ठीक है। तो वहां पे इनका रोल आता है। तो ये गैप कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, और टिश्यू को जो है वो शेप देने में ये बहुत काम करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में ये अपना रोल प्ले करते हैं एज अ essential component of the tissue structure। So अब हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अंडर जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे, ओके। सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी है, एक ग्रुप, एक तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल इसके अंडर आते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अंडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक तो हमने पैक्टिन डिस्कस किया था, ठीक है, जो हमने सेल वॉल कंपोजिशन जब देखी थी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, तो हमने पैक्टिन को डिस्कस किया था, और हमने वहां पे डिस्कस किया था कि ये दो सेल के बीच में प्रेजेंट होता है और उनको मतलब एडिशन करवाने का वर्क करता है, ठीक है। तो स्टिकी नेचर है, स्लाइम प्रोड्यूसिंग है, इसीलिए ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल में होता है पैक्टिन। अब हम जो है एनिमल सेल्स की बात करें अगर, ठीक है, तो सेम जैसे पैक्टिन का काम है, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल आता है हाई एल यूरोनिक एसिड, हाई एल यूरोनिक एसिड, हाई एल यूरोनिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन भी क्या है? जैसे मान लो एनिमल सेल है, दो एनिमल सेल हैं, ये दो एनिमल सेल हैं, इनको बीच में एडहेजन करवाना, ये सीमेंटिंग की तरह जो वहां पे रोल प्ले करता है, तो कौन करता है? हाई एल यूरोनिक एसिड, ओके। तो ये जो मैमेलियन या एनिमल जो सेल होते हैं, इनको, इन दोनों को एडहेजन करवाने का काम कौन करता है? दैट इज हाई एल यूरोनिक एसिड, ओके। और ये कहाँ पे कॉमनली प्रेजेंट होता है? तो इट इज प्रेजेंट इन, एक तो ये कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू
जैसे स्किन है हमारी, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड ब्लड है। सेकंड ये किस में प्रेजेंट होता है, हमारे बोन ज्वाइंट में, बोन ज्वाइंट्स में। बोन ज्वाइंट्स में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड, उसको बोलते हैं हम सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल फ्लूइड। ओके, तो उन ज्वाइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड, उसमें प्रेजेंट होता है ये मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज हाई एल यूरोनिक एसिड। और इसका काम क्या होता है इस मॉलिक्यूल का, कि जो फ्लूइड है उसमें ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है और वुंड हीलिंग में भी ये हेल्प करता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोन ज्वाइंट्स के जो फ्लूइड है, बोन ज्वाइंट्स में जो फ्लूइड है उसमें प्रेजेंट होता है हाई यूरोनिक एसिड एंड इट एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट। और इनमें क्या काम करता है, एक तो ये ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करेगा। ल्यूब्रिकेंट मीन्स कि शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम, और वुंड हीलिंग में ये हेल्प करता है। ठीक, तो यहां से इसका रोल जो है वो हमें क्लियर होता है कि हाई एल यूरोनिक एसिड का काम क्या है। सेकंड, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें हाई एल यूरोनिक एसिड का, तो ये किससे बना होगा, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये मोस्टली किससे बने होते हैं, एक तो हमारा अमीनो शुगर हो गया, एक शुगर एसिड। तो यहाँ पे भी क्या है, शुगर एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है बीटा डी ग्लूक यूरोनिक एसिड, जो हमने अभी डिस्कस किया, यूरोनिक एसिड। ओके, और साथ में आता है इसमें नाग, जो अमीन ग्रुप है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। ठीक है, तो ये अमीन ग्रुप है, ये क्या है, एसिड, शुगर एसिड ग्रुप है। और इसमें लिंकेज किस तरह की होती है, बीटा 1,3 लिंकेज। सो बीटा से हमें क्या पता चलता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो बीटा फॉर्म में प्रेजेंट है, नैग भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, बीटा फॉर्म में। और जो लिंकेज है वो फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं यूरोनिक एसिड, तो ग्लूकोज की तरह ही है सिमिलर, बट यहाँ पे क्या होता है कि ये 6 कार्बन जो है उसका वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारे 6 कार्बन है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, बीटा फॉर्म है, तो बीटा में हमें पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो अप साइड को जाता है, बाकी जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का सिमिलर रहता है इस तरह से। तो ये मैंने कौन सा मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, बीटा डी ग्लूक यूरोनिक एसिड, बीटा डी ग्लूक यूरोनिक एसिड। अब हम ड्रॉ करेंगे एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। तो ग्लूकोसा अमीन में क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस था बाय अमीन ग्रुप। ओके, सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा अप साइड, क्योंकि बीटा फॉर्म हम देख रहे हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एसिटाइलेटेड अमीन, अमीन तो है ही बट अमीन भी कैसा है, एसिटाइलेटेड, तो इसको बोलेंगे हम एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन। बाकी मॉलिक्यूल सेम रहेगा, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, ये इसका थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे यहाँ पे लिंकेज बनेगा। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि हमने क्या बोला फर्स्ट और थर्ड के बीच में लिंकेज है। ओके, फोर्थ जो है वो सेम रहेगा और फिफ्थ भी यहाँ पे CH2OH। सो ये हमारा नैग का स्ट्रक्चर है। अब हमने लिंकेज बोला, लिंकेज क्या है हमारा, बीटा 1,3 लिंकेज है। तो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, ये यहाँ पे थर्ड कार्बन, इनके बीच में लिंकेज। और लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल जो ये ग्रुप है, फर्स्ट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और थर्ड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में इन दोनों के साथ बॉन्ड बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन के बीच में। तो ये हमारा हाई एल यूरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, सेकंड हम एक और मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमने म्यूकोपॉलीसैकेराइड में फर्स्ट मॉलिक्यूल डिस्कस किया, हाई एल यूरोनिक एसिड, जो कि एनिमल सेल्स को आपस में क्या करता है, एडिशन करने का काम करवाता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मोस्टली हाई एल यूरोनिक प्रेजेंट होते हैं हमारे जैसे ज्वाइंट्स में फ्लूइड होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। इसमें एक और मॉलिक्यूल आता है हिपारिन, हेपरिन। ओके, हेपरिन जो होता है ये हमारा बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है ये भी ग्लूकोसामीन और ग्लूक यूरोनिक एसिड से मिलके बना होता है। हम अब स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, सेम ही स्ट्रक्चर रहता है, बट इसमें क्या है कि ज्यादातर ब्लड वेसल्स में
प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स में, टिश्यूज में इसका क्या काम होता है कि जैसे ब्लड कोगुलेट हो गया, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करता है। ब्लड वेसल्स में जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है उसको ये प्रिवेंट करता है, इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है, एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट, तो इसका जो फंक्शन है क्या है, एंटी कोगुलेंट है ये। ओके, और ये ज्यादातर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लीवर में। कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर में। किडनी में भी होता है ये, किडनी में हो गया, ठीक है, और लंग्स में भी होता है, बट ज्यादातर किसमें प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर में। ओके, सो सेकंड मॉलिक्यूल अंडर द म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज हेपरिन। थर्ड मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अब यहां पे एक और चीज देख रहे हैं कि सल्फेट मॉलिक्यूल भी ऐड है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि ये किससे बना होगा, NAG N-एसिटाइल-ग्लैक्टोसामीन या जो भी हमारे ग्लूकुरोनिक एसिड है, बेसिकली उनसे ही फॉर्मेशन होगी इस मॉलिक्यूल की। बट यहाँ पे एक और चीज ऐड होगी, सल्फेट ग्रुप, ठीक है, सल्फेट ग्रुप। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो है टिश्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, टिश्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसी तरह से एक और मॉलिक्यूल आता है डर्मेटन सल्फेट। डर्मेटन सल्फेट, इसका भी सिमिलर ही फंक्शन रहता है। ये भी क्या हेल्प करता है, टिश्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे अंडर दी म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप्स थे वो डिस्कस किए। हाई यूरानिक एसिड हो गया, हेपरिन हो गया, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, इनका रोल। एंड स्ट्रक्चर बेसिकली हमने फोकस किया हेटेरोपॉलीसेकेराइड का, जिसमें दो ग्रुप होते हैं मेनली, शुगर एसिड एंड अमीनो शुगर, जो हमें मोस्टली स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द हेटेरोपॉलीसेकेराइड।